Hello children, today we are going to start chapter number 19, Nationalist Movement and Achievement of Independence. In this chapter we will learn about the main objective of non-cooperation movement, formation of Swaraj Dal, civil disobedience movement and Quit India movement. So let's start. Mahatma Gandhi's entry into Indian politics heralded a new era. After 1919, Gandhiji gave a new shape and direction to Indian politics and nationalist movement. Later on, several movements took place under his leadership. At first, let's read about the Rowlatt Act. To suppress the impact of revolutionaries and nationalist feelings in India, British government constituted a committee under Justice Sir Sidney Rowlatt. The committee tabled its report in 1918. Under the suggestions of the committee, two bills were passed in Central Legislative in 1919. These bills were known as Rowlatt Act. Despite opposition from Indian, this bill was implemented on March 8, 1919. The Rowlatt Act was passed for quick hearing of cases of revolutionaries by British government and to deny the appeal rights to them. Under the Act, the government was given the right to arrest anyone without any trial on the pretext of treason. Similarly, the government could stop his bail and prevent his activities. The Act empowered government to search the arrest revolutionaries without any warrant. An appeal could not be made against it. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. तो जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की एंट्री हुई तो एक नए युग का आरंभ हुआ। 1919 में महात्मा गांधी ने भारतीय पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्ट किया। अब राष्ट्रीय आंदोलन एक नए रूप में होने लगे थे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बहुत से आंदोलन हुए। सबसे पहले हम रौलट एक्ट को देखते हैं। भारत में जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए और जो नेशनलिस्ट की जो फीलिंग भारतीयों में उभर रही थी उसको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर सिडनी रौलट जो जज थे वहाँ पर उनके लीडरशिप में एक उन्होंने कमेटी नियुक्त की और कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो हमारे भारत में विधानमंडल में 2 विधेयक पारित किए गए फरवरी 1919 में। इन जो विधेयक थे, इन विधेयकों को रौलट एक्ट का नाम दिया गया। अब इनमें भारतीयों द्वारा विरोध करने पर भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी 8 मार्च 1919 को यह लागू कर दिया गया। अब यह इसके क्या था, इसमें यह था कि यदि कोई भी व्यक्ति जो राजद्रोह के संबंध में यदि गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को शक है कि वो राजद्रोही है तो उसे बिना कोई मुकदमा चलाए बंदी बना सकते हैं, उसे जमानत लेने वो अन्य दूसरे कार्यों पर रोक लगाने का अधिकार जो था वो सरकार को प्राप्त हो गया। इसमें सरकार ने बिना वारंट के रेवोल्यूशनरीज की तलाशी करना और गिरफ्तारी करने की शक्तियां ये एक्ट उनको प्रदान कर रहा था, प्रदान कर दिया उसने। और उनके उनके जो निर्णय थे उन पर अपील भी नहीं हो सकती थी। वो जो गलत करें या सही करें वो जिसको चाहे उठा करके रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी घोषित करके और उसे सजा दे सकते थे। और इसके विरोध में पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा गया, दुकानें बंद रही, हड़ताल हुई, तो सरकार ने उसमें दमन नीति अपनाई और 6 अप्रैल 1990 को उन्होंने इसको नेशनल डिसऑनर डे मनाया, मीन्स राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में इसको मनाया। जलियांवाला बाग massacre. There was great resentment among the people on the restriction laid upon the entry of Gandhiji and other leaders in Punjab. This protest grew intense when 2 popular leaders of Punjab, Dr. Satpal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested without any reason by the Deputy Commissioner of Amritsar. The people took out a peaceful rally in protest of this arrest. The police tried to stop the procession, but on failing to stop, they opened fire. As a consequence, the
procession became very violent and people set houses on fire. Panicked by Amritsar incident, the government handed over the charge of city to General O'Dwyer on April 10, 1919. On the day of Baisakhi on April 13, 1919, a general meeting was called at 4:30 p.m. in Jallianwala Bagh, which attracted over 10,000 people. General Dyer reached the park with 400 armed troops and without prior warning to the crowd ordered his troops to open fire, which lasted till the ammunition ran out. This resulted in 1,000 deaths and left a large number of people fatally injured. गांधी जी और अन्य नेताओं को पंजाब में इंटर होने से उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वहां की जनता में बहुत गुस्सा आ गया, बहुत आक्रोश आ गया। और वो आक्रोश उस समय जब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जनता ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका और सफल नहीं होने पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसके बाद जुलूस ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया और सरकारी इमारतें जो थी उनमें आग लगा दी गई। अमृतसर की जो गवर्नमेंट थी इस स्थिति से घबरा गई और गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल 1919 को जो शहर का जो प्रशासन था वो जनरल ओडायर को सौंप दिया। अब सार्वजनिक आयोजनों पर, प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। 13 अप्रैल 1990 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित थे। जनरल डॉयर लगभग 400 अपने सैनिकों के साथ हथियार जो जिनके पास थे उनके साथ उस स्थल पर पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उसने उन सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी और जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक वो गोलियां चलवाता रहा, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हो गए। इसे ही जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के आदेश दिए गए और जनरल ओडायर को पद से हटा दिया गया, लेकिन उसकी निंदा नहीं की गई और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके रक्षक के रूप में उसको देखा गया। बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी एक डिप्लोमेसी की नीति अपनाई और उन्होंने उसको हटा तो दिया, लेकिन उसको पुरस्कार के स्वरूप में एक तलवार और बहुत सारा धन भी दिया। अब 1990 से 1922 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध और दो आंदोलन चलाए गए, वो था खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो वी विल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट video.